department, Goregaon East MPS Secondary School. So today we will start with the second lesson of our history, that is India events after 1960. So let us start this lesson. So students, as you know, India became independent in 1974 CE, and India accepted the constitutional framework in 1915 and became a sovereign democratic nation. Now see, as we know that our nation, that India, get released from British rule in 1947 and the establishment of the free and independent India nation were held. But there is a slight difference between our independence and our constitutional framework. Both the things are different because in 1947 only we get independence from British rule, but there is no constitution in that rule, only we get independence. But on 26th January 1915 we make our constitution. प्रियम्बल जो हम पढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 1950 में हमें मिला एंड बिकम अ सोवरेन डोमेट्रिक नेशन. और इससे क्या हुआ कि हम एक, हमारा जो नेशन है that become a sovereign democratic nation. So Constitution of India is the supreme law of India. The document lays down the framework that demarcates fundamental politics code, structure, procedures, powers and duties of government institution and set out fundamental right, directive principle and the duties of citizen. Now these are the some rules, or on the basis of these rules our constitution is made. मतलब हमारा जो constitution बना, ठीक है, हमारा जो संविधान, constitution मतलब हमारे संविधान जिसके अंदर अलग अलग रूल्स किए गए हैं. अब रूल्स किसके लिए है? फॉर गवर्नमेंट फंडामेंटल, ठीक है, गवर्नमेंट के लिए है, हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनके लिए है, ठीक है. तो इन सब के लिए जो अलग अलग ड्यूटीज सिटीजन को करनी है कि हर एक देश में रहने वाला जो सिटीजन है, नागरिक है, उसने कैसे रहना है, उसको क्या फ्रीडम्स है, उसके क्या राइट्स है, rather than that what are the duties of government people और government institutions. हर एक इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट से रिलेटेड है उनकी क्या क्या ड्यूटीज है, क्या क्या रूल्स है. तो ये सारी चीजें जो है, पॉलिटिकल पावर्स है, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दी है. और ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 26 जनवरी 1950 को हुआ. और इससे क्या हुआ कि हमारा नेशन इट बिकम अ democratic nation, sovereign democratic nation. It means what? कि the citizen of India can elect their members as a political parties and they make rules and no one make differentiate or make disturbance in the rules. ठीक है, हमें जो पीपल है, सिटीजन है इंडिया के, वही हम लोग मिलके ही हमारी डेमोक्रेटिक पार्टी बनाते हैं. ठीक है, हमारे जो लीडर्स है उसको हम ही लोग चुन के देते हैं और हमारे चुने हुए लोग ही इनको रूल बनाते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे लोग मतलब हमसे ही चुने गए जो लीडर्स हैं वो जो रूल्स बनाते हैं, तो उन रूल्स को कोई भी बाहर का मतलब आउटसाइड ऑफ द कंट्रीज और कोई कंट्री का नेशन का पर्सन आके, लीडर आके उसको डिस्टर्ब नहीं कर सकता है, क्योंकि ये हमारा देश है तो हम ही इसके रूल्स बनाएंगे और हम ही इनको फॉलो करेंगे. तो किसी और देश का कोई भी पर्सन इन रूल्स को तोड़ नहीं सकता या फिर इसके बारे में बोल नहीं सकता. सो द इंडियन सोसाइटी इज मल्टीकल्चरल and people of various languages, region, ethnicities and caste live here. As we know, our India is a multi-cultural nation. हमारा जो नेशन है वो मल्टी कल्चर्ड है. यहाँ पे अलग अलग कास्ट, रिलीजन, कल्चर के लोग जो है वो रहते हैं और वो भी एक साथ रहते हैं. ठीक है, तो इसलिए हमारा नेशन जो है वो मल्टी कल्चर्ड है. यहाँ पे देयर आर वेरियस से लैंग्वेजेस आर देयर, रीजन्स आर देयर, वेरियस कास्ट इज देयर, रिलीजन्स आर देयर, बट वी लिव टुगेदर as a democratic nation. So in short we know that
We studied that we get independence in 1947 and we make our constitution in 1950, 26th January 1950. So next one, during the initial period after independence, India needed to solve different issues of economic, political and social development. So the establishment of Planning Commission and emphasis on industrialization was a mean to achieve economic development and to eliminate poverty in India. Now see, the initial period means that period when we get independence. इनिशियल पीरियड किसको बोला है कि वो टाइम जब हमें इंडिपेंडेंस मिली एंड एट दैट टाइम वी आर नॉट ऑल लिटरेट. ठीक है, हम जो थे मतलब वी आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया. एट दैट टाइम ऑल सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर नॉट लिटरेट. ठीक है, वो सब लिटरेट नहीं, वी ऑल वर इलिटरेट. उस समय की बात है इन 1947, 1947 या फिर 1950 बताइए कि उस समय पे जितने भी लोग थे इंडिया से बिलोंग जो करते थे वो सारे लिटरेट नहीं थे, उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था. तो ऐसे समय में जब देश की जनता जो है वो अनपढ़ है, तो इनके अंदर हम किस तरह से डेवलपमेंट लाइन, इट इज अ बिग चैलेंज बिफोर द लीडर्स. now see what happened. So India needed to solve different issues of economy. तो इंडिया को सबसे पहले जो अलग अलग इशू है, जैसे इकोनॉमिक है, अब हमारे देश की इकोनॉमिक कैसे बढ़ेगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन से बढ़ेगी. अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए उनको मशीन चलाते आना चाहिए, उसको सीखना पड़ेगा. तो ये सारे चैलेंजेस थे. उसके बाद में पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट. नाउ पॉलिटिकल, इसका मीन्स है अगर पॉलिटिक्स में लीडर्स को भाग लेना है तो वो तो पढ़े लिखे रहेंगे, लेकिन जो उनको वोट करने वाले हैं वो अनपढ़ है, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं है कि डेवलपमेंट किसको बोलते हैं देश को, क्योंकि वो इतने साल तक गुलामी ही करते आए. ठीक है, बिकॉज दे वर अंडर द रूल ऑफ ब्रिटिशर्स. ब्रिटिशर्स के अंडर में रूल करने के कारण उन लोगों को डेवलपमेंट ये कुछ नहीं मालूम था. तो इस तरह से किस तरह से पॉलिटिकल और सोशल डेवलपमेंट हो, ये सारे इश्यूज थे उस समय इंडिया के सामने, बहुत बड़ा चैलेंज था. एंड फॉर दैट दे एस्टेब्लिश प्लानिंग कमीशन. और उस समय प्लानिंग कमीशन, व्हाट इज प्लानिंग कमीशन? The Planning Commission was an institution in the government of India which formulate India's 5-year plans. Among their function, okay, in his first Independence Day. तो इस तरह जो फर्स्ट इंडिपेंडेंस डे हुआ हमारा, तो तब ये प्लानिंग कमीशन बनाया गया. अब प्लानिंग कमीशन का काम क्या था कि जितने भी रूल्स या फिर जो भी हमें पॉलिसीज रन करनी है हमारे डेवलपमेंट के लिए, पॉलिटिकल सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, तो कौन कौन से रूल जो है वो कंप्लीट करने हैं, तो वो 5 साल में क्या क्या कंप्लीट होगा, तो ये जो पूरा प्लानिंग बताया गया, तो इसी को प्लानिंग कमीशन बोला गया. तो फर्स्ट प्लानिंग कमीशन बनाया गया जिससे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन है, ठीक है, वो हमारे देश में बढ़ा. जैसे जिसके कारण कि हमारे देश की जो इकोनॉमी है, ठीक है, जैसे अलग अलग जो इंडस्ट्रीज आई वहां, तब आयरन की इंडस्ट्री आई, उसके बाद में कपड़े की इंडस्ट्री, जो कॉटन से जो कपड़ा बनता है, लूम्स जिसको हम बोलते हैं, उसकी इंडस्ट्री आई. तो इससे क्या हुआ कि लोगों को बहुत ज्यादा काम मिला, और काम के कारण जो इकोनॉमी है वो हमारे इंडिया की बढ़ती गई, जिससे कि इतनी गरीबी जो थी हमारे, बिकॉज ब्रिटिशर्स रूल्ड ओवर 200 years, 200 साल तक जो हमारे ऊपर उन्होंने रूल किया, राज किया, उतने में तो उन्होंने इंडिया से सब कुछ लूट के ले गए थे. तो इंडिया तो पूरा गरीब हो चुका था, पॉवर्टी की लाइन पे था वो. तो किस तरह से उनको ये वहां से निकालना है, तो ये काम उन्होंने सक्सेसफुली किया. After that, successful conduct of elections and faith in democratic traditions made it possible for us to achieve political stability. Now, successful conduct of elections. Now, what do you mean by successful conduction of elections? इसका क्या मतलब है कि जब first election हुआ हमारे इंडिया में, as I told that the citizens of India were illiterate at that time. उस समय की बात ऐसी है कि लोगों को
इन सब बातों का कोई ज्ञान ही नहीं था कि किस तरह से पॉलिटिकल लीडर्स को चुना जाए, और अगर उनको चुन के देना है तो किस सिस्टम में उतरा जाए, क्योंकि उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, उतने वो डेवलप नहीं थे। क्योंकि अगर इलेक्शंस होते तो उसके अंदर केवल 2-3 लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, 100,000 लोग पार्टिसिपेट नहीं करते, द होल नेशन वो गेट पार्टिसिपेटेड इन दिस इलेक्शन प्रोसेस। पूरा का पूरा जो देश होता है वो इस पॉलिटिक्स इलेक्शन सिस्टम में आता है। तब उन्होंने सबसे सिंपल किया कि दे मेड सिंबल्स फॉर एवरी पार्टी। ठीक है, अभी भी हम लोग जब देखेंगे कि हर एक पार्टी का अपना एक सिंबल है। लाइक जो कांग्रेस है, कांग्रेस का पंजा जो है वो है, बीजेपी का क्या होता है, कमल का फूल होता है, राष्ट्रवादी कांग्रेस का घड़ी होता है। तो ये सब क्यों है? ये सब है कि जिससे कि जो ग्रामीण भाग के लोग हैं, रूरल एरिया के जो लोग हैं, जिनको ये समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी कैसे लिखते हैं या फिर कांग्रेस कैसे लिखते हैं, बट दे नो द leaders of that party. So if they want to win that party, they will tick or they give their votes to that symbol. ठीक है, तो इस तरह से उस समय पे सक्सेसफुल कंडक्ट हुआ फर्स्ट इलेक्शन, जिसको सक्सेसफुल करने के लिए इंडिया ने सिंबल्स का यूज किया कि अलग अलग पार्टी के अलग अलग सिंबल्स है। तो हर एक पार्टी का जो है, अभी भी वैसे ही होता है, इलेक्शन आता है तो हर एक पार्टी अपने बारे में अच्छा बताती है, तो जो सिटीजन को जो पार्टी अच्छी लगी वो उस सिंबल को वोट देके इलेक्शन स्टार्ट किया। तो ये जो प्रोसेस हुई, ये बहुत अच्छी तरह से हुए, और इस तरह से हमारा जो डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन है वो अभी तक चलता आ रहा है, और इसके अंदर हमारी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी दिखती है। सो आफ्टर दैट, at the same time, several social reforms, including politics and programs for the weaker section of the society, were sought to be implemented. तो इसी के अंदर जो वीकर सेक्शन थे, जैसे लोअर कास्ट के लोग हैं, बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, वीकर सेक्शन के हैं, तो इनके लिए भी अलग अलग प्रोग्राम्स जो है वो बनाए गए और इनको डेवलप करने की कोशिश की गई। नाउ नेक्स्ट वन, द 1960s. So 1960s means that event which are held after 1960. 1960 के बाद में हमारे देश में क्या-क्या इवेंट हुए? Now, in the decade of 1960s, several events occurred which had a huge impact on the political situation in India. The regions of Goa, Diu and Daman were freed from the Portuguese rule and become parts of Indian Federation. Now see, the regions of Goa, Diu and Daman, okay, freed from Portuguese rule and become parts of India Federation means what? You can see on the screen that the different parts of India, that is Diu, Daman and Goa, at that time they were under the rule of Portuguese. ठीक है, हमारे देश में पोर्तुगीज भी आए थे और ब्रिटिशर्स भी आए थे, तो क्योंकि ब्रिटिशर्स की जो संख्या थी वो पोर्तुगीज से ज्यादा थी, इसलिए उन्होंने ब्रिटिशर्स ने बाकी देश पे कब्जा किया और कुछ इस जगह पे पोर्तुगीज ने अपना जो है वो रूल चलाया। तो उसके अंदर गोवा सबसे पहले है, आफ्टर दीव एंड दमन। तो इसके ऊपर तब पोर्तुगीज का ही जो राज चलता था। लेकिन 1960s में क्या हुआ कि दीव, दमन और गोवा, इनको भी पोर्तुगीज की तरफ से फ्री कर दिया गया। क्योंकि आपको अगर याद होगा तो आपने 9th में पढ़ा होगा कि जो कोल्ड वॉर हुआ था, ठीक है, उसके लीग ऑफ जो कोल्ड वॉर हुआ था उसके अंदर ऐसे नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो हुई थी, उससे बताया गया था कि कोई भी देश अभी परातन नहीं रहेगा, मतलब डिपेंडेंट नहीं रहेगा, सबको इंडिपेंडेंट बनाना है, हर जगह को इंडिपेंडेंट बनाना है। तो उसी के अंडर ये जो गोवा, दीव और दमन, इधर से पोर्तुगीज का जो रूल था ये खत्म कर दिया गया, और उन्होंने दीव, दमन और गोवा ये भी इंडिया के ही एक भाग हो गए। इंडियन फेडरेशन मतलब इंडियन नेशन। when some group of states are there, it is known as federation. ठीक है, जहाँ पे स्टेट्स के ग्रुप होते हैं उसे फेडरेशन बोलते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं बट दे लिव इन ग्रुप।
उसे फेडरेशन बोलते हैं। तो इस ग्रुप का ये पार्ट हो गए दीव, दमन एंड गोवा। तो सबसे पहला काम हुआ 1960 में कि गोवा, दीव एंड दमन दे गेट फ्रीड फ्रॉम पोर्टुगीज। After that, the tension between India and China on the northern border, which had been rising, increase in 1950s, culminated in the war in 1962 between two countries. Now see, because as we know, at that time, okay, in that time, in 1950 के समय क्या था, अब हम 1960s की बात कर रहे हैं, बट वी लुक ओवर 1950, एक रिव्यू देते हैं हम 1950 की ओर से कि तब क्या था। द तिब्बत जो था, तिब्बत जिसको हम बोलते हैं, तिब्बत जो था ये चाइना का ही एक पार्ट था, ठीक है। तो तिब्बत और इंडिया, इनके बीच में जो लाइन है जिसको द मैकमोहन लाइन बोला जाता है, तो इसको, इसके ऊपर चाइना बोलता था कि हमारा रूल है और हम बोलते थे कि हमारी है। तो इसके जो बाउंड्री है, इसके लिए जो टेंशन थे, तो 1950 से चल रहा था, ठीक है। नॉर्दर्न बॉर्डर में ये जो है टेंशन चल रहा था, बट इस बॉर्डर को पाने के लिए, इसको क्लियर करने के लिए क्या हुआ, अ वॉर वाज हेल्ड इन 1962। 1962 में इंडिया एंड चाइना के बीच में एक वॉर हुआ था फॉर द रीजन ऑफ मैकमोहन लाइन। यू कैन सी ऑन द स्क्रीन द मैकमोहन लाइन। हियर तिब्बत इज देयर एंड हियर अरुणाचल प्रदेश मीन्स इंडिया इज देयर एंड हियर चाइना इज देयर। तो चाइना और इंडिया के बीच में तिब्बत जो था ये कॉमन था, और उस समय तिब्बत जो था वो इंडिपेंडेंट नहीं था, चाइना के रूल में ही था। तो इसलिए रूल में मतलब उनके कंट्रोल में था, ठीक है। तिब्बत जो था वो चाइना के कंट्रोल में था, इसलिए ये जो मैकमोहन लाइन है, इसके ऊपर चाइना बोलता था कि हमारा हक है और इंडिया बोलता था कि हमारा हक है। तो इस हक को पाने के लिए ही वॉर जो हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में, एंड इन दिस वॉर इंडिया गॉट डिफीट। इंडिया को इसमें हार का सामना करना पड़ा था, ओके। आफ्टर दैट, आफ्टर इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट, our first prime minister Pandit Jawaharlal Nehru led the country. He was an architect of India's foreign policy. So his contribution to the social and economic development of India is significant. Now see, after the we get independence means in 1947. After 1947, uh, Jawaharlal Nehru was became the first independent prime minister of independent India. तो सबसे पहले जो जवाहरलाल नेहरू थे वो हमारे देश के सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर थे, एंड ही वाज द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। इंडिया में जितनी भी फॉरेन पॉलिसीज चलती थी, ठीक है, उसके वो मतलब उसको किस तरह से चलाना है, ये सब उनके पास में आइडियाज थे। जैसे फॉरेन पॉलिसी में आपने पढ़ा होगा कि किस तरह से, अभी हमने जब पॉलिटिकल साइंस का जो लेसन किया था उसके अंदर हमने फॉरेन पॉलिसीज पढ़ी कि किस तरह से हमें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखनी है दूसरे देशों के साथ में। तो इसी तरह से फॉरेन पॉलिसी के अंडर जो सुप्रीम पावर शो करते थे, दैट इज अमेरिका एंड सोवियत यूनियन, इन दोनों को इंडिया ने कभी सपोर्ट नहीं किया। तो वो बोलते थे कि आपके अंडर में हमें नहीं रहना, हमें कोई सुप्रीम पावर की मदद नहीं चाहिए। तो इसने इंडिया ने हमेशा दूसरों के साथ में जो है वो दोस्ती बना के रखी, और इससे क्या हुआ कि वो जब भी कहीं पे कोई इशू लेके जाते थे तो वो उनका सॉल्व हो जाता था। तो ये जो अच्छी फॉरेन पॉलिसी हमने देखी, जवाहरलाल नेहरू ने इसको बहुत तरह किया कि बहुत अच्छे से उसको हैंडल किया कि किस तरह से हम फॉरेन पॉलिसीज की मदद से हमारे इंडिया का डेवलपमेंट कर सकते हैं। So his contribution to the social and economic development of India is the significant। तो इन्होंने इंडस्ट्रीज हो गई, ठीक है, डैम्स हो गए, आईटीआई हो गया, आईएम हो गया, इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस है या फिर डैम्स है, इन सबको उन्होंने इंडिया में लाया।
तो इससे क्या हुआ कि हमारी सोशल और इकोनॉमिक दोनों टाइप से हमारी डेवलपमेंट हुई, और सबसे पहले तो इंडस्ट्रीज लाई। तो इससे क्या हुआ कि हमारे देश का बहुत ही ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। सो बट बिकॉज ऑफ दिस डिफीट इन वॉर, ये जो डिफीट हमें चाइना वॉर में मिला था, तो इससे नेहरू जी बहुत ज्यादा दुखी थे। एंड बिकॉज ऑफ दैट जवाहर नेहरू पास अवे इन 1964। 1964 में उनका डेथ हो गया। सो आफ्टर जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री succeeded him and became the next prime minister of India. After Jawaharlal Nehru, Lal Bahadur Shastri was the second prime minister of India. So during his tenure, India and Pakistan went to war over the Kashmir issues in 1965. The Soviet Union tried to mediate between two countries. Lal Bahadur Shastri gave the slogan Jai Jawan Jai Kisan, with which he highlighted the importance of Indian soldiers and Indian farmers. So Lal Bahadur Shastri breathed his last at Tashkent in 1966. So, see student, now here the second Prime Minister, Lal Bahadur Shastri, when he was there, there was a tension between Pakistan and India ओवर द कश्मीर इश्यूज। जो कश्मीर है इसको लेके, बिकॉज एज वी नो, जैसे ही हमें इंडिपेंडेंस मिली थी 15 अगस्त को, उससे पहली रात को ही 14 अगस्त को पाकिस्तान हमसे अलग हो गया था। ओके, तो हमारी बाउंड्रीज अलग अलग हो गई थी, पाकिस्तान को हमने अलग कर दिया था। तो इससे क्या हुआ कि जो कश्मीर का भाग है, ठीक है, ये पाकिस्तान बोलता था हमारा है और इंडिया बोलता है हमारा। तो इसको लेके बहुत सारा टेंशन चल रहा था, और एक इशू हो गया था वॉर का इन 1965 में, जो इंडो पाक वॉर ऑफ 1965। और तब उस वॉर में सोवियत यूनियन ने, जो रशिया जहाँ पे है, जो यूएसएसआर जिसको हम बोलते हैं, ये सुप्रीम पावर के लेस में था। तो सोवियत यूनियन ट्राई टू इंटरमीडिएट बिटवीन दीज टू कंट्रीज। तो इन दोनों देशों के बीच में इंटरमीडिएट, मतलब उन्होंने सुलह करने का काम किया कि ये वॉर बंद करो और कुछ सुलह करके ये वॉर खत्म करो, और ये जो इशू चल रहा है इसको भी फिनिश करो। लेकिन तब क्या हुआ था कि एक एग्रीमेंट सॉल्व हुआ था, दैट इज इन उज्बेकिस्तान। ठीक है, उज्बेकिस्तान में ताशकेंद है, वहां पे एक एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसके अंडर ये बोला गया था कि अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई वॉर नहीं होगा विद द कश्मीर इशू। बट अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंड, लाल बहादुर शास्त्री was take his last breath in Tashkent in 1966। ऐसे बोला जाता है कि जो लाल बहादुर शास्त्री की डेथ है वो नेचुरल नहीं थी, उनके साथ में कुछ, मतलब इट इज अ टाइप ऑफ मर्डर। शायद उनको जहर दे के मारा गया था, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं था। इसलिए ये बात कभी भी सामने नहीं आई कि लाल बहादुर शास्त्री का ताशकंद में अपने देश को छोड़ के दूसरे देश में कैसे एग्रीमेंट साइन करने के बाद में किस तरह से उनका डेथ हुआ, ये अभी तक भी मिस्ट्री जो है वो मिस्ट्री जैसे ही है, ये सॉल्व नहीं हुआ है। लेकिन ऐसे बोला जाता है, लेकिन कहीं पे ये लिखित रूप में या फिर जाहिर नोटिस में नहीं है। ठीक है, बट whatever, Lal Bahadur Shastri gave the slogan Jai Jawan Jai Kisan because uh, he developed the food grains। ठीक है, जिस तरह से हमारे देश में गरीबी थी, तो गरीबी को हटाने के लिए जिस तरह से डेवलपमेंट जरूरी है, उसी तरह हमारे देश के जो किसान है उनका भी एक पार्ट है, क्योंकि वो इतना जो कुछ अनाज उगाते हैं उसे ही हमारे देश में जो है अनाज की पूर्ति होती है। ठीक है, सप्लाई ऑफ फ्रूट ग्रेन्स जो है वही सबको रखती है। तो इसलिए उन्होंने बताया कि जिस तरह से हमारा देश के जो डिफेंस है तो वो मिलिट्री सोल्जर्स करते हैं, उसी तरह से हमारे किसान जो है वो इस जनता का पेट भरते हैं। इसलिए अगर जवान की जय होती है तो उसके साथ में किसान की भी जय होनी चाहिए, मतलब वी हैव टू प्रेज बोथ जवान एंड किसान। सो दिस स्लोगन वाज गिवन बाय लाल बहादुर शास्त्री। सो आफ्टर लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी बिकम द prime minister of the third prime minister of India, and the third
was the first female prime minister of India in 1966 after Lal Bahadur Shastri's death. Her decision-making ability was admirable. Her decision granting the nationalization of banks and cancelling pensions of princes had for far-reaching efforts. So, during her tenure, Pakistan oppressive policies in eastern Pakistan resulted a big movement there. Now, see, Indira Gandhi, daughter of Pandit Jawaharlal Nehru, was the first female prime minister of India. She became the first female prime minister, but third but first female prime minister of India. So, because she was from a political party background, उनके घर में पहले से ही political background थे, तो politics के बारे में उनको बहुत ज्यादा अच्छी तरह मालूम था और किस तरह से देश के हित में वो कैसे कौन से कदम उठाने चाहिए, कौन सी पॉलिसीज रन करनी चाहिए, ये उनको अच्छी तरह मालूम थे। सो सबसे पहले उनका काम था नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स। जितनी भी बैंक्स थी पहले उनको नेशनलाइज कर दिया गया। पहले वे प्राइवेट हुआ करती थी, तो प्राइवेट होने के कारण लोगों का बहुत सारा पैसा जो था वो कोलैप्स हो जाया करता था, डूब जाया करता था क्योंकि वो प्राइवेट बैंक्स हुआ करती थी। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि जैसे कोऑपरेटिव बैंक्स होती हैं, कोई स्टेट बैंक्स होती हैं, मतलब पहले ऐसे ही सोसाइटीज हुआ करती थी। तो इन सबको कैंसल करके उन्होंने सारी बैंक्स को पहले नेशनलाइज किया कि उसके ऊपर अभी किसका रूल चलेगा? गवर्नमेंट का रूल चलेगा, नॉट अ सिंगल प्राइवेट रूल। तो सबसे पहले नेशनलाइजेशन हुआ बैंक्स का। आफ्टर दैट शी कैंसलिंग पेंशन्स ऑफ प्रिंस, बिकॉज एज वी नो हमारे देश में पहले राजा महाराजा ऐसे हुआ करते थे, तो उनके जो प्रिंस जो पीढ़ी चल रही थी, तो उनको पैसे दिए जाते थे क्योंकि उनकी अभी डायनेस्टी रही नहीं, उनका भी साम्राज्य रहा नहीं, तो वो राज कहाँ पे करेंगे। उनको एक लोकल सिटीजन की तरह रहना पड़ता था और उनको वैसी आदत नहीं थी, तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको पेंशन दी जाती थी उनका घर चलाने के लिए। लेकिन देखा गया कि जब ये पेंशन पे रहते थे फिर भी इन लोगों का इनके अंदर जो रूल करने का जो तरीका था वो कहीं पे जा नहीं रहा था। तो इसलिए इन्होंने क्या किया कि उनका पेंशन ही बंद कर दिया कि पेंशन बंद करो, अपना-अपना काम करो और अपना-अपना कमाओ, जैसे एक सिंपल सिटीज़न करता है वैसे। तो शी कैंसल्ड द पेंशन ऑफ प्रिंस। तो ये उन्होंने खत्म किया उनके टेन्योर में। आफ्टर दैट ड्यूरिंग हर टेन्योर पाकिस्तान ऑब्जर्व पॉलिसीज इन ईस्ट पाकिस्तान resulted a big movement. So this movement was led by Sheikh Mujibur Rahman and his organization Mukti Bahini. This crisis in East Pakistan affected India as well because millions of refugees come in India. Now see, when her tenure was there, जब उनका tenure चल रहा था, ठीक है, मतलब उनका गवर्नमेंट जब चल रही थी, तो सबसे पहले ये जो प्रॉब्लम तो चल ही रहा था, इंडिया और पाकिस्तान का वॉर खत्म हुआ, तो एकदम तो आज तक भी नहीं खत्म हुआ है ये जो टेंशन है, तो तब भी ये टेंशन चल ही रहा था। लेकिन इसके साथ में जैसे पाकिस्तान के 2 भाग थे, ईस्ट एंड वेस्ट, ठीक है? तो ईस्ट पाकिस्तान जो था, वो अलग कर दिया गया। लेकिन जो बाकी का पाकिस्तान था, जहाँ पे अभी बांग्लादेश है, वहाँ पे भी उस देश पे भी पाकिस्तान का ही रूल था, ठीक है? लेकिन क्योंकि वो लोग उस साइड रहते थे, तो ये जो पाकिस्तान हमने अलग किया इंडिया में से, तो ये लोग उनको बहुत ज़्यादा प्रताड़ित करते थे, उनको बहुत शोषित करते थे, उनको बहुत तंग करते थे और वो बोलते थे कि आप पाकिस्तान का भाग हो ही नहीं। तो इस तरह से वो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम किया करते थे। तो ईस्ट पाकिस्तान में जो ये मूवमेंट चली, उसके अंदर शेख मुजीबुर रहमान नाम के एक लीडर थे जिन्होंने मुक्ति वाहिनी एक्चुअली मुक्ति वाहिनी इज देयर। वाहिनी मतलब स्ट्रीम, तो स्ट्रीम ऑफ मुक्ति मतलब स्वतंत्रता के लिए जो स्ट्रीम बहती है उसको बोला है मुक्ति वाहिनी। तो बंगाल में होने के कारण इट इज नोन एज वाहिनी। सो मुक्ति वाहिनी इज ऑल्सो नोन एज द बांग्लादेश फोर्स, ठीक है, was the guerrilla resistance movement consisting for the Bangladesh military, paramilitary and civilians during the war of liberation.
तो ये जो गुप्ती वाहिनी, ये जो लिबरेशन मतलब स्वतंत्रता जी की जो वॉर थी, ठीक है, ये लड़ी गई। तो इससे क्या हुआ कि जो ईस्ट पाकिस्तान था, वो स्वतंत्र हुआ और वो बांग्लादेश उसको नाम दे दिया गया, ठीक है। तो लेकिन इससे क्या प्रॉब्लम हुआ कि ये जो वॉर चल रहा था, मतलब ये जो टेंशन्स चल रही थी ईस्ट पाकिस्तान में से, तो वहां पे इतने लोगों को तंग किया जाता था कि वहां के लोग रिफ्यूजीज बन के इंडिया में आ रहे थे, ठीक है। रिफ्यूजीज मतलब किसी एक जगह के लोग, जब उस वो जो देश उनको तंग करता है, उनको खाने के लिए नहीं देता है या फिर उनको राइट्स नहीं देता, उनको बहुत ज्यादा सताता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो जगह छोड़ के दूसरे कंट्री में आते हैं। तो इस तरह जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे, वो उनको वहां पे तंग हो रहा था, तो वो क्या कर रहे थे, रिफ्यूजीज बन के इंडिया में आ रहे थे। तो ऑलरेडी इंडिया की इतनी पॉपुलेशन थी और उसके अंदर और ये लोग ऐड होते चले जा रहे थे। तो इसके कारण इंडिया को ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो है वो हो रहा था, ठीक है। सो आफ्टर दिस प्रॉब्लम इन 1970s, अब 1970s में से दिस इज शेख मुजीबुर रहमान, ठीक है, हु फॉट फॉर इंडिपेंडेंस इंडिया। So in 1970s, now here the chapter of 1960s is closed. यहाँ पे 1960 का जो टाइम है वो खत्म होता है। नाउ 1970s मीन्स इट इज 10 गैप ऑफ 10 years, तो 10 years में इतना कुछ हुआ। आफ्टर 1970 in 1970s the 1970 war between India and Pakistan led to the creation of an independent country called Bangladesh। तो जिस तरह से बांग्लादेश के या फिर ईस्ट पाकिस्तान के लोगों को तंग किया जा रहा था और रेफ्यूजीज बन के वो इंडिया में आ रहे थे, तो इंडिया ने सोचा कि वॉर से ही ये बात अब सुलझ सकती है। तो इंडिया और पाकिस्तान में 1971 में ये वॉर हुआ फॉर द डिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश, और ये वॉर इंडिया ने जीती, और इससे क्या हुआ कि एक इंडिपेंडेंट नेशन बांग्लादेश जो है वो बना। So in 1971, India won the war against Pakistan that resulted in the birth of Bangladesh. So you can see that on the screen that West Pakistan and East Pakistan. ये जो ईस्ट पाकिस्तान का जो भाग है वो हमारा इसका था। ओके, आफ्टर रोल ऑफ प्राइम मिनिस्टर Indira Gandhi's strong leadership was prominent in this case issue. As a party of India's policy to use atomic energy for peaceful purposes, India successfully carried out an underground test of an atomic device at Pokhran in Rajasthan in 1974. So, all all things are we are studying the government of Congress, that is इंदिरा गांधी। तो अभी हम जो कुछ पढ़ रहे हैं वो इंदिरा गांधी का टेन्योर है, जब वो प्राइम मिनिस्टर बनी है, तो उनके प्रधानमंत्री जो प्राइम मिनिस्टर बनी है तब का टेन्योर है। तो पहला काम हुआ कि उन्होंने जो पेंशन है वो कैंसिल करवाई, नेशनलिज्म नेशनल जो बैंक थे वो नेशनलाइज किए, ठीक है। और उसके बाद में वॉर के आदेश दिए 1971 टू फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ बांग्लादेश। और उसके बाद में ये सब तो पॉलिटिकल इश्यूज हो गए, बट इसी के साथ में उन्होंने एक और चीज कराई, वो थी एटॉमिक एनर्जी which is used for electricity and other so many things। जो एटॉमिक एनर्जी थी, तो इसका टेस्ट सबसे पहले पोखरण में किया गया अंडर हिज हर लीडरशिप। जब वो लीडर उसके अंडरशिप लीडरशिप के अंडर में ये जो पोखरण में सबसे पहला एटॉमिक डिवाइस का चेक हुआ था, टेस्ट हुआ था इन 1974। ओके, and in 1975 the people of Sikkim voted for joining the Indian Republic and became the full-fledged in India Federation। तो इससे पहले 1975 से पहले, बिफोर 1975, सिक्किम वाज अ कंट्री। वो एक कंट्री था सिक्किम, जैसे नेपाल एक छोटा कंट्री, वैसे सिक्किम भी एक अपना एक छोटा कंट्री था। जैसे आप देख सकते हो यहाँ नेपाल है, सिक्किम है, ठीक है। ये पूरा सिक्किम जो है ये एक कंट्री था, बट क्योंकि एक साइड में चाइना, एक साइड से नेपाल,
ये तो इस छोटे से कंट्री को कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था, तो उन्होंने सबसे सिंपल समझा कि अगर हम अकेले रहेंगे तो हमारे ऊपर चाइना ज़रूर हम पे कब्ज़ा करेगा। इसलिए उसने पहले से ही क्या किया कि सिक्किम ने वोट करके, उनकी जो पब्लिक थी उन्होंने वोट करके इंडिया फेडरेशन में वो आ गए, इंडियन फेडरेशन में, मतलब एक इंडिया के जो स्टेट ऑफ ग्रुप्स है उसमें वो मिक्स हो गए, तो फिर से वो इंडिया का एक स्टेट जो है वो बन के रह गया। तो इस तरह से 1975 में सिक्किम बिकम ए फुल फ्लेग्ड स्टेट इन इंडियन फेडरेशन। So during this decade, the political situation in India grew unstable. The Allahabad High Court gave the verdict in 1974 that Indira Gandhi, the then Prime Minister, had misused the government machinery during her election campaign. It led to nationwide strikes and protests. During this period, the situation became more complicated due to resistment led by Jayaprakash Narayan. So see, तो जिस डीके ऑफ दिस पीरियड मतलब जिस तरह से आगे बढ़ता चला जा रहा था, तो इसके डीके मतलब खत्म होने से पहले 1970s खत्म होने से पहले जो पॉलिटिकल सिचुएशंस थी, वो बहुत ही अनस्टेबल होते हुए जा रही थी। तो अनस्टेबल कैसे हो रही थी कि जो इलेक्शंस थे, इलेक्शंस लड़े गए, तो ऐसे जयप्रकाश नारायण जो अपोज में थे कांग्रेस के, तो उन्होंने ऐसे बताया कि क्योंकि जब इलेक्शंस होते हैं, व्हेनेवर इलेक्शंस वर देयर आर देयर, द लीडर्स कैनॉट यूज एनी टाइप ऑफ गवर्नमेंट प्रॉपर्टी फॉर देयर इलेक्शन पर्पस। ठीक है, जब भी इलेक्शंस होते हैं, तब भी जो गवर्नमेंट की चीजें होती है, जैसे गवर्नमेंट मशीनरीज होती है, गवर्नमेंट पीपल होते हैं, ठीक है, मतलब गाड़ियां हो गई, या फिर जो कुछ ऑफिसेस हैं या फिर ऑफिसर्स हैं, इनके लिए कोई उनको कोई भी पर्सनल अपने लीडर करने के लिए नहीं यूज कर सकते। ठीक है, अपना जो ये लोग कैंपेन करते हैं, ठीक है, वोटर्स बढ़ाने के लिए जो कैंपेन करते हैं, तो यहाँ पे वो लोग अपने गवर्नमेंट की चीजें नहीं यूज कर सकते। लेकिन जयप्रकाश नारायण ने ऐसे बोला कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने कैंपेन के लिए उन्होंने गवर्नमेंट मशीनरीज की यूज की गई है, और ये इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये वर्डिक्ट माना, ये माना गया, और उनको जेल भी हुई थी इंदिरा गांधी को, और इसके बदले में बहुत ही ज्यादा स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट भी हुआ था, क्योंकि इंदिरा गांधी ने ये चीज यूज की थी इसलिए। सो द सिचुएशन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इन कंट्री वर्स देन द गवर्नमेंट डिक्लेयर द state of national emergency on the basis of the constitutional provisions relating to emergency। तो ये एक रूल है कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए कि जिससे कि देश को हैंडल नहीं कर पाए, कोई लीडर्स उसको हैंडल नहीं कर पाए, गवर्नमेंट उसको हैंडल नहीं कर पाए, तो वहां पे इमरजेंसी की सिचुएशन लगा देती है। तो इमरजेंसी की सिचुएशन मतलब नेशनल इमरजेंसी, मतलब जो राइट्स मिले हैं पीपल को, वो उनका यूज नहीं कर सकते। जैसे वो प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है, वो स्ट्राइक्स नहीं कर सकते, वो यहाँ से वहां जा नहीं सकते, जिसको हम कर्फ्यू भी बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से इमरजेंसी लगा दी जाती है, और इसके ऊपर राष्ट्रपति जो होते हैं उसी का पूरा कंट्रोल रहता है, तब कोई भी गवर्नमेंट कोई काम नहीं करती। ठीक है, गवर्नमेंट अलग होता है और प्रेसिडेंट अलग होता है, तो इसको प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं कि अगर प्रेसिडेंट रूल लग जाए तो वहां पे कोई काम गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होता है, सब कुछ बंद होता है। तो कोई आपको प्रोटेस्ट करने का, जो भी आपके राइट्स हैं, घूमने फिरने का आपको राइट नहीं रहेगा, प्रोटेस्ट करने का राइट नहीं रहेगा, आप कुछ का खुद कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज इन द इमरजेंसी। सो दिस ट्रिब्यूनल पीरियड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन वर सस्पेंडेड, मतलब जितने भी राइट्स होते हैं वो बंद किए जाते हैं। तो ड्यू टू द इमरजेंसी द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन बिकम डिसिप्लिन्ड बट द ह्यूमन राइट्स वर रिस्ट्रिक्टेड। मतलब ये जब लगा वहां पे इमरजेंसी लगा, तो इससे क्या हुआ कि सब लोग टाइम पे सब कुछ काम करने लग गए। जैसे अगर गवर्नमेंट होती है तो वो आराम से चलने जाती है, ऑफिस के लोग आराम से आते हैं, बट गवर्नमेंट रूल करने के कारण क्या हुआ कि लोगों के अंदर डिसिप्लिन आ गया, वो टाइम पे काम पे आने लगे, टाइम पे सारा काम कर ले। लेकिन
जो ह्यूमन राइट्स थे वो पूरी तरह रिस्ट्रिक्टेड हो गए. सो द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी लास्टेड फ्रॉम 1975 टू 1977 एंड आफ्टर दैट जनरल इलेक्शन वर्स कंडक्टेड. तो 2 साल तक कंटिन्यूस इमरजेंसी जो थी वो लगी हुई थी. और फिर 1977 में फिर से जनरल इलेक्शन मतलब आम चुनाव जिसको हम बोलते हैं वो हुए. सो on the backdrop of emergency, many opposition parties came together, and formed a party called the Janta Party. The Congress Party, led by Indira Gandhi, was roundly defeated by this newly formed Janta Party. So Morarji Desai became the prime minister, the fourth prime minister of India. सो सी द बैकड्रॉप ऑफ इमरजेंसी मतलब ये जो 2 साल 1975 टू 1977 तक ये जो इमरजेंसी रही देश में, तो इससे लोगों का क्या हुआ कि कांग्रेस के ऊपर से भरोसा उठ गया कि अब ये पार्टी अच्छा काम नहीं कर रही है. ये सब प्रॉब्लम्स मद्देनजर से रखे. और देखिए जब कोई पार्टी अगर थोड़ा प्रॉब्लम में अटक जाए तो दूसरी पार्टियां तुरंत खड़ी हो जाती हैं कि हाँ इसने ऐसे किया दे प्रोटेस्ट दैट पार्टी. तो इस तरह से जब हम किसी एक चीज पे हैमरिंग करते रहे तो लोगों को उस बात पे विश्वास हो जाता है कि हाँ अब ये चीज सच है. तो वैसे ही जो हैमरिंग हुई कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि नहीं इन्होंने गड़बड़ की है, तो ऐसे ये जो 2 साल गए तो इसके अंदर क्या हुआ, इतने में बहुत सारी छोटी छोटी पार्टीज जो थी वो एक साथ आई और उन्होंने कांग्रेस को हराने के लिए जनता पार्टी नाम का एक स्पेशल पार्टी बनाया. और ये जो इलेक्शंस हैं उनके अंदर उन्होंने एक न्यूली पार्टी दैट इज जनता पार्टी वो आई और वो जीती. तो जनता पार्टी के ही मोरारजी देसाई जो थे दे बिकेम द फर्स्ट फोर्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. तो ये मतलब नॉन कांग्रेस पार्टी के थे. ये जो मोरारजी देसाई थे ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऐसे जो तो नॉन कांग्रेस पार्टी के थे. इससे पहले 3 जो थे वो तीनों की तीनों कांग्रेस पार्टी के ही थे. तो मोरारजी देसाई वाज द फर्स्ट prime non-Congress prime minister, but in the series he was the fourth prime minister of India. But जैसे मैंने आपको बताया कि स्मॉल पार्टीज कम टुगेदर एंड दे मेक अ वन पार्टी दैट इज जनता. तो जैसे अलग अलग छोटी पार्टीज थी तो उनके आइडियोलॉजीज में डिफरेंशिएशंस था. उनका कहना तो एक ही था कि कांग्रेस ने अभी पार्टी में नहीं गवर्नमेंट में नहीं आना चाहिए. लेकिन ये जो छोटी छोटी पार्टीज थी कहीं पे इनके अंदर भी मतभेद था. जैसे एट प्रेजेंट है हमारे महाराष्ट्र में, ठीक है ना, अभी भी आप देख सकते हो कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो शिवसेना, कांग्रेस एंड राष्ट्रवादी कांग्रेस इन तीनों से मिली बनी हुई है. बट आइडियोलॉजीज तीनों की अलग अलग है. इसलिए कोई भी अगर प्रॉब्लम आता है तो उसे सॉल्व करने में उनको टाइम लगता है क्योंकि हर एक की आइडियोलॉजी अलग अलग होती है. तो वैसे ही अभी भी था कि ये जो छोटी छोटी पार्टीज बन के जनता पार्टी बनी थी, लेकिन इसकी जो छोटी छोटी पार्टीज जो थी इन सबकी आइडियोलॉजी अलग थी. इसलिए ये जो प्राइम मिनिस्टर बन के आए मोरारजी देसाई, ये बहुत दिनों तक प्राइम मिनिस्टर नहीं रहे बिकॉज ऑफ इंटरनल डिफरेंसेस बिटवीन दीज स्मॉल पार्टीज. ये जो स्मॉल पार्टीज थी इनके बीच में ही इंटरनल डिफरेंसेस थी. एंड आफ्टर Charan Singh succeeded him, but even this government was not was a short-lived one. After that, Chaudhry Charan Singh became the fifth Prime Minister of India. चौधरी चरण सिंह बने बट हिज गवर्नमेंट आल्सो वाज नॉट लिव लॉन्ग. वो भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी. एंड इलेक्शन वर कंडक्टेड वंस अगेन इन 1980 एंड द कांग्रेस पार्टी अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी अगेन केम अप इन पावर. तो अगेन चौधरी चरण सिंह भी बिकॉज ये छोटी छोटी पार्टी से बना था तो इन्होंने दिखा दिया कि हमारे अंदर एकता ही नहीं है. जनता पार्टी है लेकिन उनके अंदर बॉन्डिंग नहीं है, एकता नहीं है. तो लोगों को ये समझ में आ गया कि इन पार्टी से कुछ नहीं होने वाला. डेवलपमेंट के लिए हमको कांग्रेस पार्टी का ही साथ देना पड़ेगा. और इसलिए 1980 में इलेक्शंस हुए और उसके अंदर फिर से इंदिरा गांधी बिकम द सिक्स्थ प्राइम मिनिस्टर ऑफ
इंडिया अगेन। फिर से इंदिरा गांधी जो थी वो प्राइम मिनिस्टर बनी। ओके, सो इट वाज द एंड ऑफ 1970s. नाउ वी विल स्टार्ट विद 1980s. नाउ ड्यूरिंग दिस decade, the Indian political system faced many challenges. The Sikh in Punjab demanded an independent state of Khalistan and began a movement which went on to become violent and destructive. Pakistan had lent its support to his movement. Now see, in 1980s, अब 1980s में, क्योंकि छोटे छोटे प्रॉब्लम तो देश में हो ही रहे थे, क्योंकि इंडिपेंडेंस मिले, डेवलपमेंट हो रही थी, लोग अभी लिटरेट हो रहे थे, उनको समझ में आ रही थी सारी बातें। और क्योंकि पाकिस्तान जब अलग हुआ तो ये समझ में आया उनको कि अगर हमने हक मांगा तो हमको कोई अलग कर सकता है, हमने थोड़ा फाइट किया तो हमको अलग कर सकता है, उनको ऐसा आइडियोलॉजी थी। तो उसी के डिमांड रखते हुए सिख इन पंजाब डिमांडेड एन इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ खालिस्तान। तो उन्होंने, यू कैन सी ऑन स्क्रीन, खालिस्तान, खालिस्तान मांगा। अब खालिस्तान क्या भाग था कि सम पार्ट ऑफ पाकिस्तान एंड सम पार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज पंजाब, हरियाणा एंड सम पार्ट फ्रॉम राजस्थान। दे वांट इट एज अ खालिस्तान। मतलब जैसे उनका कहना था, जिस तरह से पाकिस्तान को इंडिया से अलग कर दिया गया, उसी तरह अब स्पेशल खालिस्तान बनाया जाए, दैट इज ऑफ सिख। ये माइनॉरिटीज में ही गिने जाते हैं, ये हमारे देश में सिख लोग बहुत कम हैं, तो ये माइनॉरिटीज में ही गिने जाते हैं। तो इनका ऐसा बोलना था कि जिस तरह से पाकिस्तान अलग कर दिया गया, वैसे ही खालिस्तान बोल के सिख लोगों का एक अलग कंट्री होना चाहिए। जैसे दे डिमांडेड एन इंडिपेंडेंस ऑफ दिस स्टेट, बट इंडिया वाज नॉट रेडी विद इट। इंडिया इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि पाकिस्तान देके ही वो पहले ही प्रॉब्लम देख रहे थे, तो फिर से खालिस्तान देके फिर से प्रॉब्लम जो है उनको नहीं करना था। बट इसके बीच में क्या हुआ, क्योंकि पाकिस्तान ने देखा कि जब खालिस्तान वाले ये इंडिया से लड़ रहे हैं, तो इन्होंने खालिस्तान के जो मूवमेंट थी उसको सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, जिससे कि इंडिया के ऊपर प्रेशर बढ़े। एंड फॉर दैट they make a bond with this Khalistan Sikh people. तो ये सिख पीपल थे, उनके साथ में उन्होंने बॉन्डिंग की कि किस तरह से आपको खालिस्तान जो है वो इनसे मांगना ही है, सपोर्ट करने लगे। और वो धीरे धीरे जो सपोर्ट था वो टेररिज्म में बदलता चला गया। वो उनको जो है आर्म्स थे, गन्स हैं, बुलेट्स हैं, बॉम्ब्स हैं, ये सब उनको देने लगे कि यू बिकेम अ स्ट्रॉन्ग मिलिट्री। अगर कभी हमको कुछ उपद्रव या फिर किसी तरह से हमको नुकसान करना है, तो हम इन सब का यूज करके इंडिया को परेशान कर सकते हैं। तो उन्होंने धीरे-धीरे ये जो सपोर्ट था खालिस्तान के लिए, सिख के लिए, तो ये कहीं पे उन्होंने धीरे-धीरे क्या किया, एक टेररिज्म जैसे कर लिया। और इसी के लिए उन्होंने क्या किया कि गोल्डन टेम्पल में कुछ ऐसे लोगों को छुपा के रखा, जिनके पास में बहुत सारी आर्मरी थी। मे बी हो सकता है वो पाकिस्तान के हो, मे बी वो कुछ लोग हो सकते हैं जो ब्रेन वॉश्ड हो। ब्रेन वॉश्ड का मतलब होता है कि जो आइडियाज हैं उनके दिमाग में जबरदस्ती डाले जाए। तो ऐसे उन लोगों को तैयार किया जाए कि अगर तुम लोगों के पास में आर्म्स रहेगी, अगर तुम इंडियन मिलिट्री पे अगर तुम अटैक करोगे, तो कहीं पे इंडिया जो है वो इन बातों को समझ जाएगा और खालिस्तान अलग कर देगा। तो इसके लिए, क्योंकि वो अगर कहीं और रहते तो उनको मिलिट्री जो थी वो शूट कर देते, तो इसलिए उन्होंने जो गोल्डन टेम्पल पवित्र जगह है, गुरुद्वारा सिखों का सबसे बड़ा, जैसे हम लोग महाराष्ट्र में हैं तो हम पंढरपुर को बहुत मानते हैं, ठीक है ना? तो हमारे लिए एक होली प्लेस है, पंढरपुर जो है वो एक होली प्लेस है सब लोगों के लिए। तो वैसे ही पंजाब में जो है वो गुरुद्वारा जो है, गोल्डन टेम्पल जो है वो होली प्लेस है, वो दैट इज़ द शेरिन, ओके? वो जो प्लेस है, तो इन लोगों ने क्या किया, वो जो टेररिस्ट थे, वो जो लोग थे सिख, उन लोगों को गोल्डन टेम्पल में छुपा के रखा कि इनको इनके ऊपर कोई फायरिंग नहीं होगा। लेकिन व्हेन द गवर्नमेंट गेट नॉलेज अबाउट इट, जब इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट को ये पता चला कि गोल्डन टेम्पल में टेररिस्ट छुपे हैं, तो उन्होंने
ब्लैक कैट कमांडो की डायरेक्ट एक टीम पैरामिलिट्री फोर्स मंगाई और बाय एयर से वो वहां पे उतरे एंड दे शूट डाउन। उन्होंने उन लोगों को डायरेक्टली शूट कर दिया। तो यू कैन सी द पिक्चर ऑफ गोल्डन टेम्पल, दैट हाउ बैडली दे वर शूटेड दैट टेररिस्ट। वो टेररिस्ट इतने अंदर छुपे हुए थे कि उनको शूट करने के लिए पूरी आर्मी जो थी, इंटर आर्मी, इंडियन आर्मी, इनको बहुत बुरी तरह से प्लानिंग करके उनको मारना पड़ा। तो इस तरह से जितने भी टेररिस्ट गोल्डन टेम्पल में छुपे हुए थे उनको मारा गया। बट इसका फायदा एक हुआ कि टेररिस्ट मरे, लेकिन उसका नुकसान ऐसा हुआ कि कहीं पे कुछ जो सिख थे उनके मन में ऐसे आया कि इन लोगों ने हमारे गुरुद्वारा में आके आदमियों को मारा, बिकॉज इट इज अ होली प्लेस, वो एक होली प्लेस थी। तो वहां पे किसी को शूट करना ये अच्छी बात तो नहीं थी, लेकिन देयर वाज नॉट अ आंसर बिफोर इट। उसके कोई भी हमारे पास में कोई और गवर्नमेंट के सामने कोई मुद्दा ही नहीं था कि अब किस तरह से टैक्स को बाहर निकाला जाए। ठीक है, और वो कोई अच्छा काम नहीं कर रहे थे कि उनको प्रोटेस्ट किया जाए या फिर उनको सपोर्ट किया जाए। अच्छा काम तो कर नहीं रहे थे, तो इसलिए गवर्नमेंट आर्मी ने उनको शूट कर दिया। लेकिन इसका बदला ऐसा हुआ कि वन ऑफ द बॉडीगार्ड्स ऑफ इंदिरा गांधी पर्सनल सिक्योरिटी असैसिनेटेड हर ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो इससे क्या हुआ, जो सिख थे उनके मन में कहीं पे इंदिरा गांधी को लेके बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। और इनके जो बॉडीगार्ड्स थे इंदिरा गांधी के, उनमें रेजिमेंट जो थी एक स्पेशल बॉडीगार्ड्स की होती है, तो उसके अंदर कुछ सिख भी थे। तो उन सिख जो रेजिमेंट में आए थे वो एक्चुअली उस टीम के थे जिनको इंदिरा गांधी से बदला लेना था। और उन्होंने एक दिन, जब इंदिरा गांधी उनके ही घर पे थी, अपने खुद के घर पे थी, वहां के जो उनके पर्सनल बॉडीगार्ड्स थे उन्होंने उनको शूट कर दिया। So during this period, an organization called after assassination of her, okay, after this period, an organization called United Liberation Front of Assam, that is ULFA, carried north east India। तो इसी के साथ में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी, यहाँ तो प्रॉब्लम चल ही रहा था, लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया में भी उल्फा करके जो था, दैट इज यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम। मतलब अब आसाम के लोग अपने आप को आजाद कराना चाहते थे कि आसाम अब अलग से कर दिया जाए। तो वहां पे फिर से एक तैयार हो गया, ग्रुप तैयार हो गया जिनको उनके लिबरेशन के लिए, ठीक है, अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ना था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स। टुमारो वी विल start with the next topic, okay? Yes, teacher, thank you.